Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softech. Now, let's start with the topic. So today we'll discuss Booth algorithm, Booth multiplication algorithm. Okay, this algorithm is used for multiplication only. Multiplication में भी हम अगर बात करें, so we can talk about signed multiplication. Okay, signed multiplication. What is the meaning of signed multiplication? Means multiplication of positive and negative number. Multiplication of positive and negative number. Multiplication of positive and negative number. Now, as the Booth algorithm is a signed multiplication process, it means it is used for signed numbers as well as unsigned. Signed as well as unsigned. Okay? अगर आपको अनसाइंड एप्लीकेशन करना है, इन दैट केस आप एरे मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं. For unsigned multiplication, array multipliers also can used. Okay, for unsigned multiplication, array multiplier use किया जा सकता है. But for signed multiplication, clearly for signed multiplication सिर्फ बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम ही यूज होता है. थोड़ा सा टिपिकल होगा, ध्यान से समझिएगा, अभी समझ में आ जाएगा बूथ मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है. बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम में हम शिफ्टिंग कराते हैं. बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम में क्या कराते हैं? शिफ्टिंग कराते हैं. एंड शिफ्टिंग किस तरीके से होती है? दो तरह से शिफ्टिंग होती है. ओके, जो मेथड हम इसमें यूज करते हैं, दैट मेथड्स आर नोन एज शिफ्ट मेथड्स. एंड वो शिफ्ट मेथड्स कौन कौन से होते हैं? राइट शिफ्ट सर्कुलर. इन केस ऑफ राइट शिफ्ट सर्कुलेंट, इन केस ऑफ राइट शिफ्ट सर्कुलेंट क्या होगा? ये सर्कुलर पोजीशन में जो है रोटेट करेगा. लाइक सर्कुलर पोजीशन मींस this 0 is shifted to this position. So new number will be 1 0 1 1 0. This 0 will be provided here, so it will become 0 1 0 1 1. So see this number, it is 0 1 0 1 1. Okay, this is right shift circulant. This is right shift circulant. So this was your right shift circulant. So this was your right shift circulant. Next is right shift arithmetic. Right shift arithmetic क्या काम करेगा? Right shift arithmetic will do what? In short, right shift arithmetic is known as RSA. Right shift arithmetic is known as RSA, and this RSA will do what? This RSA will again provide you right shift. Right shift with 2-digit addition. Like as you see here, there is a number 0100. 0100. Like this is the number. In this number, this is the first number, this is the second number. Okay, add these two, 000, 011, 110, and carry is 1. So answer is 1010. Answer is 1010. In case of right shift arithmetic, the first bit will be on its position and it is copied on the next position. Now this is moved on further and this. Like
जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल बी एट इट्स पोजीशन एंड copied to the next upcoming position and copied to the next upcoming position. Okay, like 1010, क्या लिखेंगे, 1 की जगह 1 आ जाएगा, यही वाला 1 अब नेक्स्ट पोजीशन पे भी आएगा, 0 एक एक शिफ्ट हो जाएंगे अब ये, तो न्यू नंबर विल बी 11010, 11010, दिस विल बी द न्यू नंबर. ओके, ये दो राइट शिफ्ट पोजीशंस जो है आपकी, ये आपके बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम में यूज होंगी. ओके, कौन कौन सी हैं? राइट शिफ्ट सर्कुलर RSC and RSA, that is right shift arithmetic. Okay, right shift circular and right shift arithmetic, ये दोनों यूज होंगे किसमें? बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम. Now see the process of booth multiplication algorithm. This is the process. सबसे पहले जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, लाइक हमारे पास नंबर्स हैं यहाँ पर 13 and 10, 13 and 10. Now you have to do what? 13 into 10, आपको ये निकालना है. 13 और 10 जो है डेसिमल नंबर है and we have to do multiplication in binary. So first of all convert these number into binary, convert these number into binary equivalent. Okay, आपने convert किया, क्या conversion क्या आया? 1101. 13 का conversion है 1101, 1101 and 10 का है 1010. बाइनरी इक्विवेलेंट है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके देख सकते हो, अदरवाइज आप जो टेबल बनाते हो उस टेबल में भी चेक कर सकते हो. नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझिए, वो क्या कहती है? बाइनरी और डेसिमल, इसमें आपके पास डिफरेंस क्या है? सिर्फ बिट्स का, लाइक 100, 1101. ओके, इसमें आपका डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है. अब जो डेटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस डेटा में जो फ्लक्चुएशंस है, लाइक 10000001, तो फ्लक्चुएशन कितनी है? एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है. ओके, अनदर डेटा है, लेट आपके पास वो डेटा इस तरह से है, लाइक यहाँ लिख लेते हैं 1010011010. इसमें फ्लक्चुएशंस कितनी है? बहुत सारी, बार बार 1 से 0 से 1 से 0 से 1 बार बार जा रहा है. ओके, बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम में हम ये चेक करते हैं कि जो भी फ्लक्चुएशन है आपके पास वो मिनिमम हो, फ्लक्चुएशंस जो है वो मिनिमम हो. मिनिमम फ्लक्चुएशंस का मींस लाइक आपको ये नंबर चूज करना है जिसमें फ्लक्चुएशन मिनिमम हो. बट आपके पास नंबर गिवन कौन सा है? 13 और 10. आप अपनी मर्जी से 3 और 4 तो ले नहीं सकते. जो इन दोनों में से नंबर है, इन दोनों में कौन कौन से नंबर है आपके पास? 1101 एंड 1010. इन दोनों में से एक नंबर ऐसा है, ये टॉप साइड, जिसमें 1010 बार बार चेंज नहीं हो रहा, बट दिस इज द सेकेंड नंबर जिसमें बार बार ट्रांजिशंस हो रही हैं, 120021, 120021. ओके, बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम में जब इस तरह की ट्रांजिशन होती है तो आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ओके, सो जो बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम क्या कहता है? determine which operand has the least transitions between bits. least transition between bits का मतलब क्या है? जिसमें बार बार 1 से 0 या 0 से 1 ना हो रहा हो. ओके, जिसमें बार बार 0 से 1 या 1 से 0 ना हो रहा हो, उस नंबर को आप x लेंगे. ओके, एंड दूसरे को आप y लेंगे. जिसमें बार बार चेंजेस नहीं हो रहे हैं वो x होगा, और जिसमें बार बार चेंजेस हो रहे हैं वो y होगा. सो इसमें कौन सा है? 1101. इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो हमने x की वैल्यू ले ली 1101.
1010 बार बार चेंज हो रहा है, तो इसको हमने सेट कर दिया y 1010. Now the question arises, if you have a number like 101010, another number is 010101. Now in this case, which will be the x and which will be the y? Now you can randomly choose any of the x and any of y, because इन दोनों में ही ट्रांजिशंस जो हैं जीरोस और वंस का वो सेम है. व्हेन यू हैव एन ऑप्शन कि आपके पास एक नंबर है जो ये दिया हुआ है और दूसरा नंबर है ये वाला, ऊपर वाले में तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, नो ट्रांजिशन इज देयर, मींस 1 1 1 1 सारे 1 है, देन इट्स ओके. सो दिस विल बी द x, जिसमें लेसर फ्लक्चुएशंस हैं. जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी, दैट विल बी योर y. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, as you know that Booth multiplication algorithm is signed operation. Booth multiplication algorithm is signed operation. So it is better to calculate minus y. पहले से ही आप माइनस y को कैलकुलेट करके रखिए. माइनस y का मतलब क्या होता है, देखिए y and 2's complement of y, minus y is equals to 2's complement of y. ओके, माइनस वाई लिखने का मतलब क्या होता है, अगर आप y लिख रहे हैं, लेट आपके पास y है, y का अगर आपने 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया, दैट इज नोन एज नेगेटिव ऑफ y. ओके, सो हियर द y इज, देखिए y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1010, वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0101, इसके अंदर आप फर्दर 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 plus 1 1, now 0, 1 plus 1 0 and carry is 1, this is 1, again 1 0, so this is negative of y. Okay, so this is negative of y. Okay, it means any number a और a का 2's complement is 2's complement is the negative of that number. Okay, now moving forward, second step, this was your first step. Okay, second step, create a table like UVXX minus 1. Create a table like this. Create a table like this in which you have 4 flags U, V, X and X minus 1. You already know what is X? X minus 1. I'll tell you what is U and V. देखिए, first column is U. First column is U, holds the results from each step. स्टेप बाय स्टेप हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड इट विल होल्ड द रिजल्ट. ओके, सेकेंड कॉलम इज वी, होल्ड द ओवरफ्लो. नाउ ओवरफ्लो इज कैरी. ओवरफ्लो इज नोन एज कैरी. ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, कैरी. लाइक व्हेन यू हैव मल्टीप्लाइड 8 with 7, it will give you 56. Okay, this 5 is like, this 5 is like carry. If this number will like this, then the 5 is the carry, so carry will be provided to the next number. Okay, so in the same manner,
during multiplication, if your result exceeds from the bits size of bit, then it will be an overflow, and that overflow will be kept in V, because अगर आप overflow को discard कर दें, कैरी को discard करेंगे, like मैंने अभी शो किया था, in case of 8 into 7, अगर आप उस 5 को discard कर देंगे तो आपका जो next step का result होगा वो ठीक नहीं होएगा. Okay, so you need to keep the carry or you need to store the overflow. X is what? Operand already जो आपके पास given था, अभी हमने लास्ट स्टेप में जो ऑपरेंड देखा है, ओके, जिसके अंदर लीस्ट ट्रांजिशंस हैं, दैट इज द ऑपरेंड. ओके, और वहां पर हम क्या करेंगे? राइट शिफ्ट सर्कुलेंट. राइट शिफ्ट सर्कुलेंट का मतलब क्या होता है? लाइक अगर आपके पास ये नंबर है तो ये लास्ट वाली जो बिट है ये राइट से उठकर लेफ्ट की तरफ आ जाएगी, राइट से उठकर लेफ्ट की तरफ आ जाएगी, और नया नंबर आपका क्या बन जाएगा? 0101. तो राइट शिफ्ट सर्कुलेंट ये होता है दैट जो राइट मोस्ट बिट है वो चेंज होकर लेफ्ट मोस्ट की तरफ आ जाएगा, तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो राइट साइड से शिफ्ट हो गया है. ओके, एंड x minus 1, the fourth column, x minus 1 holds the least significant bit from x. least significant bit यानी कि least significant bit क्या होगी? ये वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होगी? दिस वन. दिस इज योर MSB एंड दिस इज योर LSB. ओके, सो LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ x बिफोर सर्कुलेशन. ओके, नाउ इफ दिस इज द नंबर, सो दिस इज द LSB. उसके बाद आप शिफ्ट कर दोगे तो नया नंबर ये बन जाएगा. अब LSB की वैल्यू क्या हो जाएगी? LSB is 1 now. Now LSB is 1. So x minus 1 क्या करेगा? प्रीवियस बिट को रिप्रेजेंट करेगा. x minus 1 क्या करेगा? प्रीवियस बिट को रिप्रेजेंट करेगा बिफोर RSC. Now when you are starting with multiplication, listen carefully. अभी आपके पास क्या है? देखिए 1101, यही ऑपरेंड दिया हुआ है, हमने उस ऑपरेंड को यहां लिख भी लिया है 1101. ओके, इस ऑपरेंड को आपने यहां लिख भी लिया x को. ना इन केस ऑफ x minus 1, why it is 0? अभी तो ऑपरेंड इतना ही था आपके पास, तो ये 0 कहां से आ गया? when you are starting with the operation, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो यहां पर, तो बाय डिफॉल्ट आप प्रीवियस बिट को 0 लोगे. ओके, इट मींस जब भी एल्गोरिथम को स्टार्ट करोगे आप, इन दैट केस x minus 1 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी. इन दैट केस x minus 1 की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी जब भी आप बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम करोगे. पहला स्टेप यही होगा. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप 3, what will happen? Now check the least significant bit of x and the bit in x minus 1. See the table. The LSB of x, that is 1 and x minus 1. क्या possibilities हो सकती है? Either both 0, either x is 0, x minus 1 is 1, either x is 1, x minus 1 is 0, or x is 1 and x minus 1 is 0. Sorry, x minus 1 is 1. Only these 4 possibilities are there. Okay, only these 4 possibilities are there. Now see, you will do what? इस स्ट्रिंग से आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने. These are 4 possibilities: 0 1 1 0 0 0 and 1 1. Okay, so you will do what? If the string is 0 1, means x is 0 and x minus 1 is 1. In this case, if x is 0 and x minus 1 is 1, you will do what? Add y to the value of u. It means अब इस वैल्यू में y ऐड हो जाएगा और जो रिजल्ट होगा उसको राइट शिफ्ट कर देंगे. तो क्या होगा? पहले आपके पास नंबर क्या है? यहाँ पर 0 0 0 0,
और y की वैल्यू है 1 0 1 0 1 0 1 0. Result will be 0 1 0 1. यही आएगा. राइट शिफ्ट कर देंगे जब हम इस नंबर को. देखिए जरा ध्यान से, मैं दोबारा बताता हूं आपको. द नंबर इज 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0. राइट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला 0 उठ के यहाँ आ जाएगा. तो शिफ्ट होने के बाद नंबर आएगा 0 1 0 1. ओके, 0 1 0 1. Okay, if the string is 1 0, if the string is 1 0, subtract y from the value in u. Subtract the y from u. तो in that case क्या होगा? अभी नीचे के टेबल में जो है वो मैं बताऊंगा आपको कैसे काम कर रहा है. अभी आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में देखिए कैसे हो रहा है. नाउ 0 0 0 0 u की वैल्यू है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस वाई. We have calculated minus y previously. The value of minus y is 0 1 1 0. Okay, 0 1 1 0. So the new result will be like 0 1 1 0. That's why we have already calculated minus y, because in both multiplication you have to add and subtract to obtain the multiplication. Okay, you have to add and subtract to obtain the multiplication. So in that case we have already calculated y and minus y. The number which you have kept in x need not to calculate negative. जो नंबर आप x में रखेंगे उसको उसका नेगेटिव निकालने की जरूरत नहीं है. ओनली द कैलकुलेट द नेगेटिव ऑफ y, जिसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, जिसको आप y से रखेंगे, जिसको आप मल्टीप्लायर बनाएंगे. ओके, now see 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 and 1 1. In case of 0 0 means previous bit 0 and now the latest bit is 0, then no action will be there. There is no need or to perform any action, no action. Okay, just skip the step. इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे. Okay, then it will be cleared. In case of 1 1 only right shift v, only right shift. Only right shift means एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा? जब बिट चेंज होगी. नाउ अब आपको समझ आया होगा कि हमने ये जो बिट चेंज कराई है 0 से 1 1 से 0, जो हमने ऊपर देखा था कि इतनी ज्यादा चेंजेस क्यों हैं और उसको हमने y क्यों लिया. वो इसीलिए लिया बिकॉज आपको बार बार सब्ट्रैक्शन और एडिशन ना करना पड़े. अदरवाइज बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना काफी कॉस्टली हो जाएगा. कॉस्टली इन द सेंस कि बहुत ज्यादा उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे आपको, बार बार मल्टीप्लिकेशन एडिशन. अगर आपने कोई इस तरह का ऑपरेंड ले लिया जिसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत कम है, तो आपको क्या करना होगा? उतने ही कम ऑपरेशंस करने पड़ेंगे. ओके, नाउ it is clear that why we have choose y as a fluctuated number, because जितना फ्लक्चुएशन कम होगा उतनी बार आपको ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कम करना पड़ेगा. अदरवाइज आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट उतना ही ज्यादा बार बार करना ही पड़ेगा. नाउ देखिए, अब पहला स्टेप चेक करेंगे क्या हो रहा है. इनिशियली x में लास्ट बिट क्या है? 1. x माइनस 1 में क्या है? 0. ओके, x में क्या है? 1 और x माइनस 1 में क्या है? 0. तो जब 1 और 0 आता है इट मीन्स आपको क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि माइनस वाई को u में ऐड कर दो. u की वैल्यू है 4 zeros और माइनस वाई की वैल्यू क्या थी? 1 1 0 0 1 1 0. देखिए माइनस वाई इज 0 1 1 0. तो अब क्या करेंगे? 0 1 1 0 को u में ऐड कर देंगे. देन यू विल गेट व्हाट? You will get what? 0 1 1 0. ओके, ये v में तो कोई चेंज है नहीं. उसके बाद आप राइट शिफ्ट करेंगे नंबर को. नंबर को राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या होगा?
ये वाला 0 उठेगा और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, तो न्यू नंबर विल बी 0 0 1 1। सो न्यू नंबर विल बी 0 0 1 1। और x की वैल्यू क्या बन जाएगी इस केस में, यहाँ पर x की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 1 1 0। राइट शिफ्ट हो रहा है ना, ये 1 यहीं रहेगा, एक 1 आगे आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। दिस 1 विल बी शिफ्टेड टू दिस प्लेस। नाउ सी इन दिस टेबल, व्हेन 1 0 इज देयर, सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू में भी राइट शिफ्ट हो रहा है एंड x माइनस 1 भी एक शिफ्ट हो गया, दैट इज 1। नाउ u इज दिस, v इज दिस, x इज दिस एंड x माइनस 1 इज दिस। अब आप चेक करेंगे क्या आ रहा है 0 1, previous bit is 1, next bit is 0, previous bit is 1, next bit is 0। तो जब previous bit 1 है और next bit 0 है, previous bit 1 है next bit 0 है, उस केस में क्या करेंगे add। उस केस में क्या करेंगे add of u and y। अब add करेंगे u में y को, so this is the u, दिस इज द u, दैट इज 0 0 1 1। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, नाउ सी हियर y इज 1 0 1 0। 1 0 1 1 1 0 1 1 1। Now this will be the number, that is 1 1 0 1। This will be the new number, that is 1 1 0 1। अब ये 1 1 0 1 जो है इसमें भी शिफ्टिंग कराओगे आप। शिफ्टिंग कैसे होगी, that this one is moved from there to here। Now new number will be 1 1 1 0, 1 1 1 and 0। क्लियर। एग्जाम्पल, लेट x की वैल्यू y की वैल्यू ये है, माइनस y ये है। अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें। नाउ सी द मल्टीप्लीकेशन, दिस इज द एग्जाम्पल, x इज 0 1 0 0, y इज 0 1 1 0, माइनस y इज, कॉम्प्लीमेंट लीजिए इसका, टूज कॉम्प्लीमेंट, 0 1 1 0 का कॉम्प्लीमेंट लीजिए पहले, 0 1 1 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स रिवर्स कर दो, 1 0 0 1, फिर 1 ऐड कर दो इसके अंदर, 1 प्लस 1 0 1 0 1 1 0 1 0। ये हो जाएगा आपका क्या, नेगेटिव ऑफ y। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये आपके पास क्या आ जाएगा y, ये नेगेटिव ऑफ y। ठीक है, u x में पुट करो 0 1 0 0 0 1 0 0, x माइनस 1 स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के केस में क्या होगा 0। नाउ सी व्हाट, चेक करा 0 से 0। नाउ नोट दिस स्टेप्स, these steps, okay, 0 0 no action, 0 0 no action, nothing happens, okay। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे, जस्ट आपको करना क्या है इसके बाद स्टेप 4 में, स्टेप 3 को रिपीट करते रहना है जब तक जो x है वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ जाता। x जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, तब तक आप इस स्टेप को रिपीट करते रहेंगे बार बार। नाउ अब क्या हुआ, एक शिफ्ट हुआ, ये 0 यहां चला गया तो 0 0 1 0। नेक्स्ट नंबर भी 0 0 से 0 आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं होगा, फिर आगे एक और राइट शिफ्ट कर दो, 0 यहां चला गया, 0 0 0 1, प्रीवियस 0 नेक्स्ट 1 0 1। अब क्या होगा जब 0 1 आ रहा है, ओके, जब 0 1 आ रहा है यानी कि 0 से 1 जा रहे हो आप, 0 से 1, प्रीवियस 0 था अब 1 है, देखिए प्रीवियस 0 था अब 1 है, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस 0 और अब 1 के केस में हम क्या करेंगे, दैट वी नीड subtraction, subtract y। subtraction of y is means that 2's complement of y is added into x, okay, 2's complement of y is added into u, sorry, added into u पर कर रहे हैं तो 2's complement क्या देखिए, that is 1 0 1 0, this 1 0 1 0 is added into 0 0 0 0, so you will get 1 0 1 0 and now nothing happens। इसके बाद आप इसको जो है राइट शिफ्ट करेंगे,
राइट शिफ्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये जो 1 वाली बिट है सबसे लास्ट से इधर आ जाएगी। ओके, 1 0 0 0, प्रीवियस बिट 1 थी, अब 1 से 0 जाओगे तो 1 से 0 जाएंगे तो क्या होगा, 1 से 0 जाने के केस में एडिशन होगा, एडिशन ऑफ y। तो अब y की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ से 0 1 1 0, और 0 1 1 0 को ऐड करेंगे हम 1 0 1 0 में। 0 1 1 0 को ऐड किया किस में किया जाएगा, 1 0 1 0, और 1 0 1 0 को आपने राइट शिफ्ट किया था। ओके, that 1 is here, this 1 is here, 0 and 1, this 0 is applied to v। now this is the content of u। देखिए ध्यान से, हमने, मैं यहां से दोबारा बताता हूं आपको कैसे किया हमने। हमारे पास क्या था 0 0 0 0, ओके, उसमें ऐड किया 1 0 1 0, नंबर आ गया 1 0 1 0। इसको राइट शिफ्ट करते हैं तो राइट कौन सा करेंगे हम, RSC करते हैं इसमें या RSA करते हैं, RSA ऐड करने के बाद 1 अपनी पोजीशन पे रहा, नेक्स्ट पोजीशन पे भी 1 आया, फिर ये 0 आया, ये 1 आया। सो दिस इज द न्यू नंबर 1101। ये वाला नंबर कैसे आया, ये ऐसे आया, और ये वाला जो 0 है ये आगे चला गया इसमें V में। V का जो आगे वाला 0 था वो आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद X को आपने, जो ये वाला 1 था इसको उठा के आप यहाँ ले आते हो, वो यहाँ आ गया, X के पोजीशन से यहाँ आ गया। एंड प्रीवियस बिट क्या थी इसमें, मूव करने से पहले आपने क्या देखा, क्या था 1। अब आप 1 से 0 पर आ गए हो। 1 से 0 पर आने का क्या मतलब होता है, दैट यू हैव टू परफॉर्म, 1 से 0 पर आने का मतलब क्या होता है, यू हैव टू परफॉर्म एडिशन, एडिशन ऑफ y। सो यू check the value of y, that is 0 1 1 0। now in you have 1 1 0 1, and you need to add what, 0 1 1 0। perform this addition, you will get 1 1 1 1 0 1, that 1 1 is 0 and carry is 1। okay, so in this case you got 0 0 1 1 0 0 1 1। okay, 1 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 0, carry is 1, 1 plus 1 is 0, 0 plus 0 is 0, carry is 1। this carry is discarded। यहां पर जो कैरी आ रही है u में, इसको डिस्कार्ड करेंगे। ओके, नाउ अब क्या हुआ, अब इस नंबर को आप राइट शिफ्ट कराएंगे। जो पहली बिट 0 अपनी जगह रहेगा, अब ये 0 यहां पर भी कॉपी होगा, ये वाला 0 जो सेकंड पर था थर्ड पोजीशन पर आ गया। दिस 1 विल बी प्रोवाइडेड टू हेयर, u की वैल्यू हो जाएगी ये, एंड दिस 1 इज सप्लाइड टू v। देखिए ये वाला जो 1 था लास्ट वाला, ये कहाँ आ गया, v में। जो v के 4 0 थे, अब एक ये वाला इधर से हटके इधर आ गया, तो यहाँ आ गया 1 0 0 0, और लास्ट वाला जो 0 था ये वाला, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, अगेन अब आप राइट शिफ्ट करेंगे, 0 1 0 0, ये 1 इधर चला जाएगा, 0 1 0 0। नाउ 0 1 0 0 क्या था, ये इनिशियल नंबर था x का। नाउ सी, दिस इज द इनिशियल नंबर, और ये स्टेप कब तक रिपीट करना है हमने, लूप का टर्मिनेशन क्या था, स्टेप 3, अंटिल x हैज बीन RSC, सर्कुलेट होकर, राइट सर्कुलेट होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आ जाए, तब तक आपको रिपीट करना है। नाउ रिपीटेशन करने के बाद अब आपने क्या देखा कि x जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है। ओरिजिनल पोजीशन में आने का मतलब क्या है, अब आप इसको लूप को टर्मिनेट कर सकते हो। आप इस लूप को टर्मिनेट करोगे, टर्मिनेट करने के बाद आपका जो आंसर है, दैट इज, आंसर इज योर uv। ये आपका आंसर है, लाइक 0 0 0 1, ऑलवेज आंसर यही आएगा आपका 1 0 0 0। ओके, यू हैव डन 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 24। चेक कर लीजिए 24 की वैल्यू यही आती है। ये किया था हमने, दैट दिस इज 24, 0 0 0 1 1 0 0 0, दिस इज 24। ओके, previously we have discussed Booth multiplication algorithm. Booth multiplication algorithm is used for signed multiplication, means if you have to multiply positive and negative numbers, if you want to multiply positive and negative numbers, then you can use Booth multiplication algorithm, because using array multiplier you can't perform signed multiplication.
So using array multiplier, you can't perform sign multiplication. To perform sign multiplication means multiplication of positive and negative number. You have to use Booth multiplication algorithm. In Booth multiplication algorithm, we use rotation. Booth multiplication algorithm works on the rotation principle. Like if there is a change in the sequence, like 1 to 0 or 0 to 1, if there is a change in the sequence, then the shifting operation will take place. And if continuously zeros or continuously ones are there, then there is no operation performed. Okay. Now this is the flow chart for that algorithm, Booth multiplication algorithm. Now let's understand this. We have to perform multiplication. We have choose two different registers, multiplicand in BR. BR is a register and multiplier is in QR. QR is another register. In multiplication we have two terms, multiplicand and multiplier. Okay. So multiplicand को BR में रखा और multiplier को QR में रखा. AC accumulator में 0 डाला. QN plus 1 means previous bit. सबसे पहले हम previous bit चेक करते हैं. By default previous bit को 0 लेते हैं, तो QN plus 1 को 0 किया. And SC that is sequence counter. Sequence counter basically क्या होता है? Sequence counter में हम sequence रखते हैं किसकी? Multiplier की. कितनी बार ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा. Like if you want to multiply 3 into 4, तो आप 3 में 3 को ऐड करोगे up to 4 times. तो वो जो सीक्वेंस काउंटर है वो ये बताएगा आपको कि कितनी बार आपने ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ओके. देन चेक करेंगे QN प्लस 1. QN प्लस 1 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो 0 से 1 आएगा, या वो 1 से 0 जाएगा, या फिर 0 0 या 1 1 रहेगा. अगर आपके पास QN और QN प्लस 1 दोनों केसेस में 0 0 या 1 1 होता है, मीन्स प्रीवियस बिट भी 0 और कमिंग बिट भी 0, प्रीवियस बिट भी 1 और कमिंग बिट भी 1, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट शिफ्ट रोटेशन करेंगे AC QR की. ओके. शिफ्ट रोटेशन करेंगे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट. ASHR स्टैंड्स फॉर दिस. ASHR स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट. इट मींस आप सिर्फ एक्यूमुलेटर और उसके साथ जो मल्टीप्लायर रखा था आपने उसको शिफ्ट करेंगे, उसके अलावा आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना. ऑपरेशन मींस लाइक एडिशन 1. ओके. नाउ इफ यू आर कमिंग फ्रॉम 0 to 1, अगर आप 0 से 1 आ रहे हो तो आप सिंपल एडिशन परफॉर्म करोगे. प्रीवियस बिट 0, नेक्स्ट बिट कमिंग बिट इज 1, देन एडिशन विल बी परफॉर्म. एडिशन ऑफ BR, that is multiplicand with accumulator. Multiplicand with accumulator, and the result will be shifted into accumulator itself. But if you are moving from 1 to 0, that means previous bit is 1 and coming bit is 0. Previous bit is 1 and coming bit is 0, then you need subtraction. Okay. And what is subtraction? Addition of 2's complement. Addition of 2's complement is subtraction. So BR के ऊपर हमने बार लगाया, that means 1's complement. 1's complement में जब +1 करेंगे, this is the 2's complement. This 2's complement is further added into accumulator. 2's complement is further added into accumulator. Now it will give you the subtraction result, and that result is stored in accumulator itself. Now after addition, after subtraction, or after no operation, the rotation will be there. The rotation will be there. Okay. रोटेशन कौन सा होगा? अर्थमेटिक शिफ्ट राइट. अर्थमेटिक शिफ्ट राइट का रोटेशन होगा और वो रोटेशन करेगा एक्यूमुलेटर और QR रजिस्टर. QR मींस मल्टीप्लायर. Okay. And then sequence counter will be sequence counter -1. Why it is happened? Because number of bits, like आपके पास 4 बिट का मल्टीप्लायर था, तो जो बिट्स हैं वो एक कम हो गई है. अब आपने उस एक बिट को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो सीक्वेंस काउंटर एक से रिड्यूस करेंगे. देन चेक करेंगे, अगर सीक्वेंस काउंटर 0 नहीं हुआ है, मींस आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पूरी तरह परफॉर्म नहीं हुआ है, देन यू विल अगेन मूव टू डिसीजन check, and then you will again check QN plus 1, previous bit and coming bit, previous bit and coming bit. ये ऑपरेशन तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक सीक्वेंस काउंटर 0 नहीं हो जाता. once the sequence counter will 0, now this operation will be terminated,
and your result will be in accumulator and QR. The name of registers varies. हो सकता है कहीं पर किसी बुक में या किसी जगह आप रजिस्टर का नाम X पढ़ो, कहीं पर आप रजिस्टर का नाम. The rules for Booth multiplication algorithm is rule number 1. Multiplicand is subtracted from partial product upon encountering the first least significant one. Now see this. By default we have put 0. By default we have put 0 in the first counter. Okay, previous bit को by default हम 0 सेट करते हैं. जब भी पहला 1 आएगा LSB में, ओके, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन. मींस 0 to 1 जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा. ओके, रूल नंबर 1 समझ में आया? Multiplicand is subtracted from partial product upon encountering the first least significant one in a string of ones in multiplier. स्ट्रिंग ऑफ वंस का मतलब क्या है? जो भी मल्टीप्लायर के अंदर 1 0 जो भी लिखा हुआ है, दैट इज अ स्ट्रिंग ऑफ मल्टीप्लायर. ओके, देन रूल नंबर 2 क्लियर. रूल नंबर 1 इज क्लियर. नाउ रूल नंबर 2, multiplicand is added to partial product. Multiplicand is added to partial product upon encountering first 0. जब first 0 आएगा LSB की तरफ से, with the condition provided that previous it was 1. means like हमने 0 से स्टार्ट किया और अगला भी 0 आ रहा है, तो ये ऐड नहीं होगा. ऐड कब होगा? जब प्रीवियस 1 था, नेक्स्ट 0 आया. ओके, क्लियर. एंड थर्ड इज partial product does not change when multiplier bit is identical to previous multiplier bit. means if the previous bit is 0 and your upcoming bit is 0, then partial product में कोई चेंज नहीं होगा. if your previous bit is 1 and upcoming bit is 1, then also partial product में कोई चेंज नहीं होगा. ओके, नाउ एक कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम मल्टीप्लिकेंड या मल्टीप्लायर. नाउ चूजिंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड, लाइक मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हमने एक एग्जांपल किया था XY में. ओके, एक नंबर लिया था हमने मल्टीप्लिकेंड और एक नंबर लिया था हमने मल्टीप्लायर. हाउ वी हैव चूज मल्टीप्लायर एंड हाउ वी हैव चूज मल्टीप्लिकेंड, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरोस एंड वंस चेंजिंग. ओके, मींस कितनी फ्रीक्वेंटली 0 से 1 और 1 से 0 आ रहा है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको मल्टीप्लायर लेंगे या मल्टीप्लिकेंड लेंगे. ओके, मल्टीप्लायर वही लेंगे जिसके अंदर जो चेंज इन बिट है वो कम होगा. चेंज इन बिट जो है वो कम से कम होगा, उसी को आप मल्टीप्लायर लोगे, सो दैट कि आपको बार बार एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन है वो ना करना पड़े. ओके, ऑल दीज रूल्स आर क्लियर. subtraction when 0 to 1. ओके, जब आप 0 से 1 जाओगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, जब आप 1 से 0 जाओगे तो एडिशन होगा. 1 से 0 जाओगे तो एडिशन होगा, 0 से 1 जाओगे तो सब्ट्रैक्शन होगा. एंड अगर 0 से 0 और 1 से 1 रहोगे तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा. नो सब्ट्रैक्शन, नो एडिशन विल बी परफॉर्म्ड. क्लियर टू एवरीवन? Now next we will discuss hardware implementation of Booth multiplication algorithm. अगर आपको Booth multiplication algorithm implement करना हो हार्डवेयर पर तो कैसे implement करेंगे? Now इसके लिए आपको 3 रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट है. एक तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, ओके, एक QR रजिस्टर है और एक BR रजिस्टर है. QR BR तो आप BR QR रजिस्टर्स में क्या रहेगा? मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर. BR में मल्टीप्लिकेंड, QR में मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर से आप सिर्फ बिट्स लेंगे, 1 0 1 0 चेक करेंगे. ऑपरेशन परफॉर्म करना है नहीं करना है वो किसके ऊपर होगा? मल्टीप्लिकेंड के ऊपर. सो मल्टीप्लिकेंड को एक्यूमुलेटर के साथ कनेक्ट करेंगे यूजिंग कॉम्प्लीमेंटर एंड एडर. कॉम्प्लीमेंटर एंड एडर का क्या मतलब हुआ?
अगर आपको एडिशन करना है तो सिंपल एडर में एडिशन हो जाएगा, बट अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है इन दैट केस आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, वन ऐड करना है और फिर उसको फर्दर ऐड करना है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंटर और एडर का जो सर्किट है उससे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों परफॉर्म कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंटर क्या है? कॉम्प्लीमेंटर इज नथिंग बट अ नॉट गेट। ओके, एडर आप लोगों को पहले बताया गया है, फुल एडर हाफ एडर जो भी है। प्रीवियस कैरी आती है तो फुल एडर, नहीं आती है तो हाफ एडर। नाउ एक और यूनिट यहाँ पर अलग से प्रेजेंट की हुई है, दिस इज अ सीक्वेंस काउंटर। दिस इज अ सीक्वेंस काउंटर जिसमें नंबर ऑफ बिट रखा जाएगा। लाइक आप लोगों ने प्रोग्राम्स में पढ़ा होगा, फॉर लूप में अगर आप कुछ रीड करते हैं तो उसको एरे को या स्ट्रिंग को लेंथ तक ट्रेवर्स करते हैं। ओके, दिस सीक्वेंस काउंटर परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन of length, counting the length, how many bits are there. Okay, now this is a QR register. QR register की जो last bit है that is your QN, the least significant bit of register QR. The LSB of register QR is QN. Okay, so what will be the QN plus 1? The QN plus 1 will be the previous last bit of QR register. Okay, so Qn plus 1 will be the previous last bit of QR register. You have to compare Qn with Qn plus 1. You have to compare Qn with Qn plus 1. Draw this hardware implementation. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.